Hello students, good morning. In this video, we shall learn the exercise of chapter 5, a different kind of school, from English textbook Honeysuckle. Working with the text. In your page number 62, you will have an exercise working with the text. A. Put the sentences from the story in the right order and write them out in paragraph. Don't refer to the text. आपको यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिए गए हैं उसको पैराग्राफ के हिसाब से जो भी टेक्स्ट बुक में है उसके हिसाब से आपको लिखने हैं. I shall be so glad when today is over. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightening. Only you must tell me about things. Let's go for a little walk. The other bad days can't be half as bad this day. So what will be the answer? Let me see. So जो भी इसके सेंटेंस है अगर उसको हम पैराग्राफ बनाते हैं तो उसका आंसर कैसा होगा? तो लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. The other bad days can be half bad as this. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much, but being blind is so frightening. Then next exercise. Our second exercise means B is answer the following questions. So first question. Why do you think the writer visited Miss Beam's school? Answer. The writer visited Miss Beam's school because he had heard much about Miss Beam's school and its new teaching method. Writer क्यों गए थे मिस बीम्स की स्कूल में? बिकॉज उन्होंने बहुत सारी बातें मिस बीम्स की स्कूल और उनकी मेथड जो है पढ़ाने की उसके बारे में सोचा था, जाना था, इसलिए वो वहाँ पे गए थे. व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले? ऐसी कौन सी गेम है जो हर एक चाइल्ड को स्कूल में प्ले करनी होती है? सो आंसर. एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले द रोल ऑफ बीइंग ब्लाइंड, डीफ, डम, इंजर्ड एंड लेम. Third question. Each term, every child has one blind day, one lame day. Complete the line. Which day was the hardest? Why was it the hardest? So, what will be the answer? यहाँ पे जो भी एक लाइन है उसको आपको कंप्लीट करना है. So कैसे लाइन बनेगी? Each term, every child has one blind day, one lame day, one injured day and one dumb day. Blind day was the hardest day because students felt that they were going to be hit by something every moment. Question 4. What was the purpose of these special days? जो स्पेशल डेज होते हैं उसका उनका पर्पस क्या होता है? सो आंसर. द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डेज वॉज टू गिव the children personal taste of misfortune so they can learn how to help others, those who have this kind of abilities. This is the way they can become the good citizens. Now in your textbook page number 63, another exercise we have. This is working with language. Match the words and phrases with their meanings in the box below. यहाँ पे कुछ phrases दिए गए हैं, कुछ words दिए गए हैं, उनको हमें क्या करना है? तो सपोज होम सिक का मतलब क्या होता है जो ब्रैकेट्स में दिया है, तो उसके होम सिक के सामने हमें वो लिखना है. तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर क्या होगी हम देखते हैं. सो आंसर. सो होम सिक का मीनिंग होता है वेटिंग टू बी होम. सेकंड नंबर प्रैक्टिकली, मीनिंग ऑलमोस्ट. थर्ड नंबर इट पेन्स मी, उसका मीनिंग है इट हर्ट्स मी. फोर नंबर अप्रिशिएट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज. फाइव नंबर थॉटलेस मीन्स नॉट वेरी केयरिंग. सिक्स नंबर एक्सरसाइज, इट मीन्स टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ. सेवन नंबर रिलीफ मीन्स अ वेलकम चेंज. एट नंबर घासली, घासली का मीनिंग होता है टेरिबल. नाउ वर्किंग विथ लैंग्वेज में ही बी एक्सरसाइज है. रीवर्ड दिस लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी. यहाँ पे फोर सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें आपको क्या करना है? रीवर्ड करना है. मीन्स अपने आप के हमें हमारी
हमारी रीत से लिखना है यहाँ पे। द फर्स्ट वन, I had heard a great deal about Miss Beam's school. Second number, Miss Beam was all that I had expected, middle age, full of authority. Third number, I went to the window which overlooked a large garden. Fourth number, we cannot mandate the children's mouths, so they really have to exercise their willpower. जो यहाँ पे फोर सेंटेंसेस है, हम अपने वर्ड्स में उसको कैसे लिख सकते हैं? सो आंसर आर इवन. First number, the writer had heard about the school of Miss Beams and its teaching method. Third number. Second number, the writer found Miss Beam a middle-aged and authorized woman. Third number, the writer went to the window and looked a large garden. Fourth number, the children had to use their willpower to keep quiet. So students, you can write your own way also. Okay, मैंने जो यहाँ पे दिए गए हैं ऐसा ही नहीं है कि आपको यही लिखना है. अगर आप अपनी तरफ से कुछ लिख सकते हो तो भी आप लिख सकते हो. नेक्स्ट एक्सरसाइज. द नेक्स्ट एक्सरसाइज, इट इज़ ऑन पेज नंबर 64, C1. Given below is a page from a dictionary. Look at it carefully and यहाँ पे जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है 64 पेजेस पे, तो वहाँ पे एक डिक्शनरी का पेज दिया गया है. उसमें से आपको कुछ वर्ड फाइंड आउट करने हैं. तो फर्स्ट है, फाइंड अ वर्ड विच मीन्स द सेम एज घासली. तो घासली का जो भी मीनिंग होता है ऐसे आपको वर्ड वहाँ से फाइंड आउट करना है. एंड द राइट डाउन द वर्ड्स एंड इट्स टू मीनिंग, और आपको उसके टू मीनिंग्स लिखने हैं. सेकंड वन इज फाइंड अ वर्ड मीनिंग अ पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर. थर्ड वन, फाइंड अ वर्ड दैट मीन्स एग्जामिनेशन. सो एग्जामिनेशन का मीनिंग्स क्या होता है वो भी आपको 64 नंबर पेजेस पे जो भी डिक्शनरी का एक पेज दिया है वहाँ से लिखना है. तो हम देखते हैं चलो उसका आंसर क्या होना चाहिए. सो आंसर्स ऑफ C1 इज फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन था वो ऐसा था, फाइंड अ वर्ड विच मीन्स द सेम एज घासली. जिसका मीनिंग घासली होता है ऐसे दो वर्ड हमें फाइंड आउट करना है. तो उसका मीनिंग होता है टेरिबल, उसका भी मीनिंग है कोजिंग फियर, और दूसरा मीनिंग होता है वेरी बैड. सेकंड वन, फाइंड अ वर्ड मीनिंग अ पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर. स्कूल ईयर, पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर का मीनिंग क्या होता है? सो उसका मीनिंग है टर्म. टर्म का मीनिंग होता है अ फिक्स लेंथ ऑफ टाइम, और सेकंड मीनिंग है उसका अ पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर. थर्ड नंबर है फाइंड अ वर्ड दैट मीन्स एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन का मीनिंग्स क्या होता है? सो उसका मीनिंग होता है टेस्ट, और उसका मीनिंग है, एक मीनिंग ऐसा होता है टू लुक एट समथिंग टू सी इट इज़ करेक्ट और विल वर्क प्रॉपरली, और सेकंड मीनिंग होता है टू आस्क समवन क्वेश्चंस. Then on page number 65 you have second exercise, make list of. Now make list of all the words. First one is there, all the words on the page plus any more that you can think of that begin with TERR. सो TERR ऐसे वर्ड से जो भी मीनिंग्स, कोई भी ऐसे वर्ड जो हम बना सकते तो वहाँ पे ऐसे वर्ड हमें लिखने हैं. सेकंड वन, 5 वर्ड्स दैट मे फॉलो द लास्ट वर्ड ऑन दैट पेज दैट है. तो ऐसे पेज में से हमें फाइंड आउट करना है कि जहाँ पे दैट होता है. थर्ड वन, राइट डाउन योर ओन मीनिंग ऑफ द वर्ड थैंक. थैंक का हमें ओल्ड मीनिंग लिखना है. देन राइट डाउन द मीनिंग गिवन इन द डिक्शनरी, और डिक्शनरी में थैंक का मीनिंग क्या है वो भी हमें लिखना है. सो क्या होगा उसका आंसर? तो फर्स्ट वन है जो जहाँ पे TERR रहता होता है, तो वहाँ से ऐसे हम कैसे बना सकते हैं वर्ड, वो हमें लिखना है. तो TERRACE मीन्स टेरेस, टेरिबल, टेरिटरी, टेरिफाई, ऐसे मीनिंग्स हम ऐसे वर्ड हम बना सकते हैं. सेकंड वन है दोज, दीज एंड थिएटर. थर्ड वन, द वर्ड थैंक मीन्स टू एक्सप्रेस काइंडनेस, और एग्जाम्पल क्या है उसका? थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट. ऐसे भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन राइट योर ओन सेंटेंस ऑल्सो. सो स्टूडेंट्स, वी हैव हियर फिनिश द एक्सरसाइज ऑफ 5th chapter, a different kind of school. Thank you very much.